हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਆਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਸਮਝੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚਾਰजेस ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So work done in bringing the charges from infinity to their respective position, that work is stored in the form of electric potential energy of the charges. ठीक है, so वो work ਨੂੰ electric potential energy ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ Q1 ਤੇ Q2। ਠੀਕ ਹੈ, Q1 ਤੇ Q2, Q1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ A ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ R1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ Q2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ B ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਿਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ R2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ AB ਹੈਗਾ, ਸੋ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ this plus this equal to this ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ R2 minus R1 ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ R12 ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, R2 minus R1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ this is R12, ਆ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ AB ਹੈ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ਨੂੰ ਪਗਵਾਂਗੇ। ठीक है, so displacement vector AB is R12 which is R2 minus R1। ठीक है, so ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, Q1 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ Q1 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ R1। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਚਾਰਜ Q1 ਫਰੋਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ Q1 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ Q2 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, when Q2 is brought from infinity to its position, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ R2, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ Q1 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ Q2 ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ V1। ਠੀਕ ਹੈ, V1 is the potential at point B due to charge Q1। ठीक है, आ V1 की है पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1। पोटेंशियल की ਹੁੰਦਾ देखो, पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ओवर डिस्टेंस। ठीक है, आ वैल्यू ਹੁੰਦੀ पोटेंशियल ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ W ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ Q2। ਸੋ ਇਹ 1/4 ਪਾਈ ਐप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर AB मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, सो ए की वैल्यू कितनी है R12 R2 minus R1। ठीक है, जो मर्जी तुसी लिख दो। सो W is equal to Q2 into 1/4 pi epsilon naught Q1 over R2 minus R1। ठीक है, इस थां ते आपां सो Q1 Q2 हो गया ਤੇ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ R12 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ R12 ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੋ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ R12 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਟੂ ਚਾਰजेस ਫਰੋਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ देयर ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ R1 ਔਰ R2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ to brought these charges from infinity to their respective positions. This work is stored in the form of electric potential energy which is written as U। ठीक है, electric potential energy U नाल लिखांगे। so U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R12। okay, so this is the value of electric potential energy when two charges are brought from infinity to their respective positions। okay, तो देखो अपन का ग्राफ देखना है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ अपने को लास्ट जी वैल्यू आई है वो आई है 1.45 Q1 Q2 ओवर R12। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ u ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस सेम साइन ਤੇ ਹੈ मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है मतलब एक ही होएगा रिपल्शन होएगी जो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे रिपल्शन होएगी तो उस केस च अपनी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जी है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी पर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिवें जिवें आर बढ़ता है ठीक है ना डिस्टेंस इधर बढ़ता उवें घटती है तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का इस तरह ग्राफ आएगा वैल्यू पॉजिटिव होएगी ठीक है ना। सो अगेंस्ट द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अपन वर्क करना पेगा तो वो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पेगा तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में आएगी। दूसरा केस देखो जो दोनों चार्जेस ओपोजिट पोलैरिटी दे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतने देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करिए तो यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी मीनस थल्ले वाले पासे आएगी ठीक है। तो आर जो है वो बढ़ेगा इस पासे तो यू जी है वो ज़्यादा नैगेटिव तो घट नैगेटिव होती जाएगी जिवें जिवें आर बढ़ेगा ठीक है। सो होएगी नैगेटिव ज़्यादा नैगेटिव तो घट नैगेटिव होएगी जिवें जिवें आर बढ़ेगा। सो ये जो एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नैगेटिव चार्ज है ठीक है उस केस के यू की वैल्यू जी है इस तरह चेंज होएगी ठीक है ना। सो इधर यू की वैल्यू जी है इस तरह चेंज होएगी आर दे नाल ते आ जीरो वैल्यू है आ नैगेटिव वैल्यू है ठीक है। सो यू जो है इस तरह वेरी कर रहा है when both charges are of opposite polarity okay। हाँ देखो नेक्स्ट अपना आर्टिकल है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। सो सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस विच देखो डायग्राम दे विच अपने को पहले 2 पॉइंट चार्जेस सीगे हुण अपने को 3 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 ते Q3 ठीक है। आपां इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बड़ी की है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम डिफरेंट टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस ठीक है। सो आपां फर्स्ट Q1 चार्ज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਦੋਂ ਨਾ Q2 है ना Q3 है ठीक है। सो Q1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन ਜਿਹੜੀ है नहीं हैगी तो ਤਾਂ ਕਰਕੇ कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा टू ब्रिंग क्या चार्ज Q1 फ्रॉम इनफिनिटी टू इट्स पोजीशन A ठीक है विच इज पोजीशन वेक्टर R1 फ्रॉम ओरिजिन ठीक है। सो ए पॉइंट ते आपां नूं Q1 नूं लैके आउण लई वी डोंट हैव टू डू एनी वर्क ठीक है। सो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। हुण आपां देखो Q2 नूं लैके आ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 व्हेन Q2 इज ब्रॉट फ्रॉम इनफिनिटी इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 वर्क इज डन दैट वर्क इज W12 ठीक है। सो विच इज इक्वल टू Q2 चार्ज है तो पोटेंशियल जो उनके करके रहेगा Q2 V1 ठीक है। V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पोजीशन B ठीक है। सो उनकी वैल्यू फिर आप जो लास्ट आर्टिकल च की है W12 की वैल्यू कितनी है Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इत्थे Q1 आ जाएगा इत्थे R2 माइनस R1 ठीक है आ वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1। ਹੁਣ देखो R2 माइनस R1 वैल्यू जी है वो एक्चुअल की है R12 है तो इतने आप R12 लिख देंगे सो W12 जोड़ा है कितना बन जाएगा इतने देखो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12 इन द मैग्नीट्यूड बन जाएगा ठीक है। सो मैग्नीट्यूड को आप फर्दर इस तरह लिख देंगे देखो W12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R12 ओके आ वैल्यू इसकी बन गई। सो R12 की है आ वैल्यू ए भी फिर आगे भी की है हम देखो जी R23 की है क्या वो वैल्यू है दिस BC ठीक है। सो उस तरह जड़ा ए तो सी तक पोजीशन वैक्टर बनता है जो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है वो R13 बनेगा ठीक है। हुण देखो ये तो हो गया वर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 ठीक है। फिर लास्ट आर्टिकल भी आप सेम किया। हुण देखो आप थर्ड चार्ज लैके आना है हुण दोनों चार्जेस प्रेजेंट ने Q1 ते Q2 दोनों प्रेजेंट ने
we have to bring Q3 in the presence of Q1 and Q2 ठीक है दोनों चार्जेस की प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ लेके आ रहे हैं ਤਾਂ वर्क कितना करना पेगा देखो वो वर्क की वैल्यू ਜਿਹੜੀ है वो 1 2 3 लिखांगे ठीक है ना क्योंकि ਆਪਾਂ थर्ड चार्ज ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ਤਾਂ करके W 1 2 3 लिखता तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो Q3 चार्ज है चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस इनके करके पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1 ते प्लस चार्ज ते पोटेंशियल हो जाएगा V2 पोटेंशियल होएगा इनके करके Q2 करके ठीक है तो उनकी वैल्यू देखो कितनी बनेगी W1 2 3 जड़ा है इनकी वैल्यू कितनी बन जाएगी Q3 आ V1 की वैल्यू की बनेगी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V1 की है इट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1 तो उनका पोजीशन वेक्टर की आ जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कहेंगे वो r13 आ जाएगा r13 मतलब r3 माइनस r1 जे आप इनको देखिए देखो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस तो r3 माइनस r1 ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है इथे r3 माइनस r1 आ जाएगा ठीक है उनका मैग्नीट्यूड ते ऊपर आ जाएगा चार्ज अगला Q1 ठीक है ये वैल्यू आ गई और प्लस Q3 ਤੇ दूसरा पोटेंशियल की है इनके करके इतने पोटेंशियल सो इतने चार्ज Q2 है आ ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी बनेगी आ देखो इनको दिखाना दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस ठीक है दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस ट्रायंगल आ लगेगा r3 माइनस r2 हो जाएगा ठीक है सो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इतने आएगा Q2 ठीक है अब Q2 है ठीक है Q2 आ गया इतने की आ जाएगा r3 माइनस r2 इनकी मैग्नीट्यूड ठीक है सो इनू आप लिख देंगे r23 सो इनू लिख देंगे r13 ठीक है सो अपने को आ वैल्यू जी है सारी मैं इतने थोड़ा लिख लगा W1 2 3 और वैल्यू कितनी बन जाएगी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया ठीक है Q1 Q3 ओवर आ वैल्यू r13 बन जाएगी ठीक है प्लस Q2 Q3 ओवर ओ वैल्यू r23 बन जाएगी ठीक है ये बन गया ओके ਹੁਣ देखो इनू ਆਪਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ और टोटल वर्क देखो आता हो गया थर्ड पहले अपन करना पिया सीगा आ वर्क देखो आला ठीक है तो आ वर्क करना पिया जो अपन थर्ड चार्ज लेके आए हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा W12 प्लस W123 तो ये सारा टोटल वर्क ही हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म से स्टोर हो जाएगा ता करके U की वैल्यू की बन जाएगी अपने को देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों चीज है ठीक है इतने Q1 Q2 ओवर r12 है आप कॉमन ही काट लिया ठीक है ना आ चीज आप कॉमन काट ली दोनों च तो इतने Q1 Q2 ओवर r12 है r12 प्लस इतने Q1 Q3 ओवर r13 है प्लस इतने Q2 Q3 ओवर r23 है ठीक है सो आ सारी वैल्यू आ गई ठीक है सो इनू आप समेशन फॉर्म च लिखना हो तो इस तरह लिख सकते हैं देखो इस तरह समेशन फॉर्म च लिखना हो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है सिग्मा I is equal to 1 to n is equal to I is equal to 1 to 3 ठीक है तो इतने हो जाएगा नाल इतने लिखांगे सिग्मा J is equal to 1 to 3 ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ I is not equal to J ठीक है ना ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ देखो
क्यू आई क्यू जे ओवर आर आई जे। ठीक है, ਹੁਣ देखो जो ये चीज़ लिखी ना आप, जो ये चीज़ लिखी है तो इत्थे जो देखो I1 है J2 है, आप कंसीडर करिए I1 तो J2 कंसीडर करिए, तो आप लिखांगे जो I1 J2 लिखांगे तो अपने को आएगा Q12, तो जो I2 J1 आएगा उदों भी Q12 ही आएगा। ठीक है ना, Q1 Q2 इत्थे आ जाएगा तो दूजी बारी Q2 Q1 आ जाएगा, मतलब ये रिपीट हो जाएगा पेयर। ठीक है, सो ये रिपीट हो जाएगा, क्यों रिपीट होएगा क्योंकि ये हम 6 वैल्यूज आएंगी, 3 नहीं आएंगी, एक तो I1 ली J1 J2 J3, एक I2 ली J1 J2 J3, J2 तो आएगा नहीं क्योंकि वो सेम नहीं होना। ठीक है ना, I1 ली J1 J2 J3 दो वैल्यूज, I2 ली J1 J3, I3 ली J1 J2, सो 6 वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब एक वैल्यू रिपीट होएगी। जिवें आप देखा भी I1 करिए J2 करिए तो आ Q1 Q2 ਤੇ Q2 Q1 ਇਹ सेम चीज़ होगी, रेपीटिशन हो जाएगी। सो रेपीटिशन को खत्म करने लिए आप फैक्टर 1/2 इतने मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो इतने 1/2 फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अपनी जी वैल्यू हम बन जाएगी, आप साफ साफ लिख लेंगे। सो अपने को वैल्यू की बन जाएगी u इज इक्वल टू 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I is equal to 1 to 3 summation j is equal to 1 to 3 qi qj over rij। okay, so this is the final result when three charges are brought from infinity to their respective positions। so electrostatic potential energy है, electric potential energy of system of 3 point charges। ठीक है, so ये फाइनल वैल्यू उनकी बन जाएगी। ओके, ਹੁਣ देखो इसे आप आर्टिकल ਨੂੰ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस ਲਈ भी जनरलाइज कर देंगे। सो देखो n पॉइंट चार्जेस थे 3 पॉइंट चार्जेस है ना, सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस ਲਈ ਇਹਨੂੰ जनरलाइज कर देंगे। इतने जिवें n चार्जेस होਣ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 3 ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ I is not equal to j ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ I equal to 1 to 3 j is equal to 1 to 3 qi qj over rij। सो जो n पॉइंट चार्जेस ने ठीक है ना, n पॉइंट चार्जेस आर देयर, व्हेन n पॉइंट चार्जेस आर देयर उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, देखो केस के ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਫ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ n पॉइंट चार्जेस ਆਏਗਾ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ 3 ਵਾਲਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ जनरलाइज कर देना ਉਹਨੂੰ n। सो 1 to 3 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 to n ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਸਮੇਸ਼ਨ I is equal to 1 to n आ जाएगा, समेशन j is equal to 1 to n आ जाएगा, qi qj over rij। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ I1 ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ J2 ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 3 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ। देखो 1 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਆ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਆ ਫੈਕਟਰ ਆ ਦੋ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, समेशन मतलब विच एडिशन का वैल्यू। ठीक है, फिर आप जो I2 करांगे तो आप की लिखांगे j की वैल्यू 1 तो 3 आएगी, 1 तो 3 मतलब आ रिपीट हो जाएगा, इस करके हाफ फैक्टर बाहर लगाया। ठीक है, आ भी फैक्टर एक 3 वाला आ जाएगा। ठीक है, 2 3 वाला आ गया। ठीक है, फिर I ਨੂੰ 3 करांगे तो j 1 तो 2 होंगे, जो 3 ਦੇ ਨਾਲ 1 तो 2 आ भी रिपीट होएगा, आ भी रिपीट होएगा। सो इस करके हाफ फैक्टर जो वो बाहर आप लगाया है। सो समेशन का मतलब है एडिशन। ठीक है ना, ऐड करी जाना जी टर्म्स आई जाएगी। इस तरह n टर्म्स ਲਈ ਆਪਾਂ I is equal to 1 to n j is equal to 1 to n qi qj over rij ਇਹ n ਚਾਰजेस ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, ठीक है, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ I is not equal to j। ठीक है, I ਤੇ j ਬਰਾਬਰ नहीं होंगे, I is not equal to j लिखांगे तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। ओके, हाँ जी, देखो नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलैक्ट्रिक डायपोल जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड च पिया है, आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने, पैरेलल लाइन्स, ठीक है ना। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने, इलैक्ट्रिक डायपोल जिहदा इत्थे नैगेटिव चार्ज है, इत्थे पॉजिटिव चार्ज है, एंगल थीटा बना रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल, ठीक है ना। सो इलैक्ट्रिक डायपोल प्लेस एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हुण देखो जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नूं जिहड़ी फोर्स लगदी है इन द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लगदी है, ते नेगेटिव चार्ज की जिहड़ी फोर्स लगदी है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड लगदी है। सो दिस इज द फोर्स माइनस क्या होगी इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द फोर्स प्लस क्या होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है ना। ई इलैक्ट्रिक फील्ड है अपने को, ठीक है। सो जो इस तरह की सिचुएशन होती है तो टॉर्क लगता है इलैक्ट्रिक डायपोल से, ठीक है ना। सो आप कंसिडर किया एक इलैक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, जो डायपोल मूवमेंट कितनी है पी, ठीक है, थीटा एंगल दे पिया इलैक्ट्रिक फील्ड ने, हाँ उहदे ते जदों उहनूं थीटा एंगल ते रखांगे इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल तां उहदे ते फोर्स लगेगी, इहनूं कहंदे ने कपल, ते कपल करके इहदे ते टॉर्क लगेगा। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, द टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है PE sin थीटा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इनटू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हुण देखो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ d थीटा एंगल ਤੇ रोटेट करना है ना, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ वर्क करना पेगा dw। सो dw इज वर्क डन टू रोटेट द डायपोल थ्रू एन एंगल d थीटा, ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी हो जाएगी टॉ d थीटा। सो टॉ d थीटा वैल्यू हो जाएगी dw वैल्यू कितनी बन गई टॉ की वैल्यू PE sin थीटा d थीटा, ठीक है। सो दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम थ्रू एन एंगल d थीटा। Now we want to rotate it through from angle theta 1 to theta 2, ठीक है ना। to rotate the dipole from angle theta 1 to angle theta 2, ठीक है ना, rotate it from theta 1 to theta 2। so amount of work done is W is equal to integral dW, ठीक है। वर्क ਜਿਹੜਾ ਉਹ वेक्टर क्वांटिटी नहीं ਹੁੰਦਾ, ठीक है, इस करके एरो नहीं लगाना। So W is equal to integral dW. This is equal to integral theta 1 to theta 2 PE sin theta d theta, ठीक है। So ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। So total वर्क डन इंटीग्रेशन आ जाएगा, इन्हों अपन सिंपलीफाई करांगे। So W is equal to ऐसे देखो PE जड़ा है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया, ते इंटेग्रल जिहड़ा है वो थीटा 1 टू थीटा 2 sin थीटा d थीटा रह गया। हुण sin थीटा का इंटेग्रल कितना माइनस cos थीटा, ओके। सो W कितना बन गया PE इत्थे अपनी बना देगा माइनस cos थीटा बिटवीन द लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2। नेगेटिव साइन बाहर ले जाएंगे आप, नेगेटिव साइन जिहड़ा है आप बाहर ले जाएंगे तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस PE, ठीक है। और नेगेटिव साइन आप इधर लिख लिया, तो अपर लिमिट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। सो आ वैल्यू आ गई वर्क दी टू रोटेट इट फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। हुण देखो जे थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री हो तो थीटा 2 की वैल्यू थीटा हो, 90 डिग्री का मतलब है कि डायपोल इस डायरेक्शन च है, ठीक है ना, तो उन्होंने इस डायरेक्शन चो किसी एंगल थीटा ते रोटेट करना है, ठीक है। सो उस केस दे विच इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज थीटा, ठीक है ना, इथे इफ लिख दो देन W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90। सो cos 90 जीरो हो जाता है। सो W की वैल्यू कितनी बन जाएगी फिर माइनस PE cos थीटा, ठीक है। तो आ वैल्यू वर्क की बनती है माइनस PE cos थीटा, ओके। तो देखो आ वैल्यू जी आई है W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। सो दिस वैल्यू इज स्टोर्ड इन द डायपोल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तां करके इस वैल्यू को आप U इज इक्वल टू माइनस PE
cos थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। यही वैल्यू इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डायपोल की फॉर्म च स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इन्हें इक्वेशन नंबर 1 दे दो। हुण देखो इहदे विच स्पैशल केस आपां गल करांगे। स्पैशल केस की है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। स्पैशल केस की है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। तो स्पैशल केस दे विच फर्स्ट केस है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। उस केस दे विच u की वैल्यू कितनी बन जाएगी माइनस पी ई cos 0। cos 0 1 होता है, सो दिस इज माइनस पी ई, ठीक है। सो माइनस पी ई वैसे देखो वैक्टर फॉर्म च अपन लिखना होवे ते आपां ये वैल्यू नू इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। इत्थे देखो u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं, ठीक है। सो माइनस पी डॉट ई, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, क्योंकि cos थीटा डॉट प्रोडक्ट से आ गया, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म जरूर अपन लिख सकते हैं इस तरह। और स्पेशल केस की अपन गल कर रहे हैं पीई cos 0 1 होएगा, cos 0 1 मतलब माइनस पीई। सो कहने का मतलब की है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इथों इधर आ गया, ठीक है। जो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आके ये बैठेगा तो उस केस दे विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी माइनस पीई, ये सब तो घट वैल्यू है। सो इनू आपां कहांगे इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये मिनिमम बन जाएगी, सो दिस इज मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम है ते ये स्टेबल इक्विलिब्रियम दे विच आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और दूसरा केस केस 2 की है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री है इत्थे cos 90 पर आ गए, cos 90 0 हो जाएगा, u की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी व्हेन डाइपोल इज अलाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होएगी नहीं होगी। और तीसरा केस है जो थीटा 180 डिग्री है। थीटा 180 डिग्री का मतलब है कि आपां ਉਹਨੂੰ इधरले पासे लै गए उल्टी डायरेक्शन दे विच, उल्टी डायरेक्शन च ਉਹਨੂੰ लै गए। इनका मतलब की है देखो cos 180 वैल्यू दी -1, ठीक है। सो अपने कोल u की वैल्यू जिहड़ी है वो आ जाएगी माइनस पी ई cos 180। सो cos 180 -1 हो जाएगा तो u की वैल्यू कितनी बन जाएगी, मैं इत्थे लिखन लगा u इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू -1, सो पी ई हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो u की वैल्यू अपने कोल PE हो जाएगी। So PE means it is maximum value. So when it is anti-parallel to the direction of the electric field, electric potential energy gets maximum value and the dipole is in the unstable equilibrium position. ठीक है। So a maximum है, a maximum value है, तो unstable equilibrium हो जाएगा, ठीक है। Unstable equilibrium position ਦੇ ਵਿੱਚ dipole इस कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाएगा, ठीक है। सो ये सीगे स्पेशल केसेस, ओके। हुण आपां गल करांगे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दे यूनिट दी। यूनिट की गल करांगे, देखो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जिहड़ा है वो जूल है, ठीक है। सो जूल है, आपां देखिया कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जिहड़ी है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल आ रही है, ठीक है। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल आ रही है। सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जी है वो 1 जूल होएगी, 1 जूल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होएगी जो 1 कूलम के चार्ज नू 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस जो आप मूव करा रहे हैं, ठीक है। सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल होएगी, ठीक है। मैंने चार्ज ऑफ 1 कूलम इज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। सो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा 1 वोल्ट हो जाए तो ई की वैल्यू जिहड़ी है वो 1 जूल हो जाएगी। सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेट टू बी 1 जूल व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। सो इहदी होगी एसआई सिस्टम दे विच। तो एसआई सिस्टम तो इहदा जदों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंदे ना इलैक्ट्रॉन वगैरह उदों इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी है वो इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच मापी जाती है। और 1 जूल जिहड़ा है वो इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच देखो की लिखा एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है ना इलैक्ट्रॉन के उत्ते चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। सो एक इलैक्ट्रॉन के चार्ज है, सो 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा 1.6
इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है, इन्ना चार्ज हो गया तो इंटू 1 वोल्ट, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इन्ना हो जाएगा, ठीक है। सो इन्ना चार्ज जो इन्ना पोटेंशियल जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.6 × माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस जो मूव कराया जाएगा तो उहदे जी एनर्जी होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ओके। सो देखो इसलिए आप इत्थे की लिख देंगे इस जगह पे आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, सो दिस इज कूलम इंटू 1 वोल्ट, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10 पावर माइनस 19 कूलम इंटू वोल्ट की हो जाता है जूल, ठीक है। सो इन्ने जूल हो गया। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10 माइनस 19 जूल के बराबर है। तो इतों आप 1 जूल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। So this is the relation between joule and electron volt, okay. So 1 joule is 1 over 1.6 × 10 minus 19 electron volt, okay. Thank you.